Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. As you must have guessed from the very thumbnail of this video that this video is all about linguistics. Yes, linguistics forms one of the most important, easiest, practical and most scoring topic of our NTA UGC NET exam. Not only NTA UGC NET exam, linguistics nowadays is prescribed in the syllabi of state public service commissions also. If we look at the syllabus of HPSC's assistant professor examination, linguistics was there. And if we look at the syllabi of UPPSC's GDC assistant professor examination, linguistics is there as a full-fledged unit. And if we look at our NTA UGC NET exam also, linguistics is important. It's a complete dedicated unit. This unit is rational, scientific, full of facts and forms a crucial understanding in terms of understanding our subject as a language. There ought to be the difference between literature and language. And when you study language, it becomes linguistics. सो लिंग्विस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, बहुत यूजफुल है समझने के लिए. इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स का स्कोप क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती है, जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स क्या होता है. This is not for the very first time that I'm taking linguistics as a subject of study. If you go back to my YouTube channel and see the video section, you will see that there are many videos talking about varieties of language, about English language teaching already. And this video is just an introductory video to all those videos uploaded in the context of HPSC assistant professor examination. But I tell you, linguistics is easy, it is scoring, and if you have concepts, understanding of the major concepts of linguistics, you can never go wrong with the answers. So without much ado, let us start our understanding of linguistics. And this video, my students, is important for NTA UGC NET exam. It is useful for NTA NET exam upcoming June 2026. So if you are an aspirant of English literature who is going to sit in the upcoming examination, I tell you, you must have started your preparation, and videos like this can help you a lot. So please do this video up till end, because you are going to understand linguistics in a very meaningful way, comprehensive way, and at the same time very easy way. So NTA UGC NET जून 2026 की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए लिंग्विस्टिक्स की यूनिट है ये. सेकेंडली, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जीडीसी एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है. वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आज बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स की. मैं आपके सिलेबस में भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक्स की यूनिट को टेकअप किया गया है. ये आपके लिंग्विस्टिक्स की यूनिट है जो दिया गया है. ये यूपीपीएससी जीडीसी का सिलेबस है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, सोशो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स, लैंग्वेज वेरिएशंस, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है. अगर आप इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को गेन कर लेते हो तो आई टेल यू, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द मार्क्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अपकमिंग सितंबर में होने वाला है. So, and if we look at the syllabi of UPPSC GDC, my God, that is so vast. You don't have ample time. So please view this video up till end and do comment your remarks. Do let me know आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम आपको क्या पढ़ाएं नेक्स्ट, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. लास्ट में वीडियो में हम अपना नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगेन लिंग्विस्टिक्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस, बिकॉज हम बहुत बेसलाइन स्टडी कर रहे हैं, बेसिक स्टडी कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ लिंग्विस्टिक्स, व्हाट एक्चुअली
actually is linguistics. Today, if we look at 21st century, linguistics is a subject in itself. It has completely parted ways from the literature. अब literature का part भी है linguistics, और linguistics अपने आप में एक subject of study भी है. When you study language in a scientific, systematic, rational way, that is linguistics. So हमारा आज का lecture divide होगा in 4 parameters के across. What is linguistics? Generative and descriptive linguistics, scope of linguistics, and branches of linguistics. You must have guessed by now, completely UPPSC GDC का सिलेबस उठा करके इस वीडियो को फ्रेम किया जा रहा है, बट NTA नेट का क्योंकि ईयर बाय ईयर, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट कंपटीशन, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हमें बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग होना हर चीज की बहुत जरूरी है. केवल फैंसी टॉपिक्स को पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है. अगर आप ये बेसिक टॉपिक्स पर अपना होल्ड एंड क्लैरिटी रखते हैं, यू कैन नेवर गो रॉन्ग. See, linguistics is the scientific study of language. With scientific, I mean clear study, rational study, and systematic study of a language. यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज? नो, एवरी लैंग्वेज. यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांच है, दैट डज नॉट अडेयर टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, it adheres to every language. Linguistics is such a study, such a systematic study, that it talks about, it can be referred to, it can be ruled out to any language. Primarily we are the students of English literature, तो हम English linguistics पढ़ते हैं. L2, L1 is our mother tongue. इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने डायलेक्ट्स हैं, तो हम जब L2 पढ़ते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं. ऐसे ही हमारे पिडगिन्स होते हैं, क्रियोल्स होते हैं. तो जब हम एक लैंग्वेज की, फॉर दैट मैटर एनी लैंग्वेज की, सिस्टमैटिक, रैशनल, फैक्टफुल स्टडी करते हैं, तो उसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. और लिंग्विस्टिक्स जो है, clear, systematic or rational study is known as the branch of linguistics. And today linguistics is not a part, linguistics is just not a part of literature, it is a subject in itself. आप NTA UGC नेट का एग्जाम उठा करके भी देखते हैं, तो in the list of those 84 subjects we have linguistics as a subject. linguistics के अपने डिपार्टमेंट होते हैं, और ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये सब स्टार्ट हुआ था जब लिटरेचर की स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी की गई थी. जब हम क्रिटिसिज्म स्टडी करते हैं, तो जब वर्ड्स ऑन द पेपर, लैंग्वेज ऑफ नॉवल, लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री की बात की गई, आज से पहले, बिफोर 20th सेंचुरी, व्हाट वाज देयर? देयर वाज जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स था, जनरेटिव ग्रामर था. जब आप बात करते हैं मेंटल ग्रामर की, जब आप बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की. एंड इफ वी लुक एट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज टुडे, इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन itself. Our students, our children for that matter, they are not learning A, B, C, D, E, F, G. They are understanding alphabets, they are understanding sounds in a very systematic way as to how they can pronounce each and every word by understanding, by breaking the word. All right, they are understanding the speech sound. कितने तरीके से लिंग्विस्टिक्स ने ग्रो किया है, ये रीसेंट स्टडी नहीं है. लिंग्विस्टिक्स, एपिस्टेमोलॉजी अगर हम देखते हैं, एटिमोलॉजी अगर हम देखते हैं, वर्ड के मीनिंग्स देखते हैं, डिक्शनरीज देखते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी देखते हैं, तो ये सब कुछ लिंग्विस्टिक्स की ही स्टडी है जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी. लेकिन विद द एडवेंट ऑफ नोएम चॉम्स्की एंड फर्डिनेंड डी सोश्योर, एंड विद द एडवेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट, linguistics
सामने आया है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज अ सिस्टमैटिक रैशनल साइंटिफिक स्टडी आया है तो वो लिंग्विस्टिक्स आया है। तो यहाँ पर ये हमेशा से ही लैंग्वेज की स्टडी लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड रही है, बट इफ वी लुक एट टुडे, लिंग्विस्टिक्स इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। अब यूपीपीएससी जीडीसी का सिलेबस अगर हम उठाते हैं तो वहां पर उन्होंने पहली ही बात की है जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स की एंड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स की। तो पहले समझ लेते हैं। जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स इज अ फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मेंटल ग्रामर when you go by the rule, when you feel that language, the clarity of a language, the syntax of a language is innate. When a child is born, he or she learns language from the parents and they learn sentence structure from the parents itself. So there is an innate quality of human mind to learn language. We slowly and slowly generate language. When I say this thing, the cats is running away. You know, I am speaking a sentence that is wrong, and because we are Indian, we belong to a country where we attribute international status to English language. Our parents, they know tutti frutti English, our grandparents, they know English. So जब English की knowledge कहीं ना कहीं हमारे mind में है, तो कोई भी बता देगा कि ये सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकली गलत बात कही है मैंने। द कैट्स इज रनिंग अवे, बट इट हैज टू बी द कैट्स आर रनिंग अवे। तो यहाँ पर मैंने इननेट लिंग्विस्टिक्स की बात की है कि आपकी इननेट क्वालिटी होती है कि आप बता देते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो मैंने ठीक नहीं बोला है। तो जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स स्ट्रक्चरलिज्म के आने से पहले जो लिंग्विस्टिक्स चलता था, बिफोर 20th सेंचुरी जो लिंग्विस्टिक्स चलता था वो जेनरेटिव लिंग्विस्टिक्स होता था। नोएम चॉम्स्की जो है इससे एसोसिएटेड रहते थे। ये एब्स्ट्रैक्ट एंड इननेट होता था। लैंग्वेज को मेंटल फैकल्टी की तरह देखा जाता था, rather than something that is real and something that can be स्ट्रक्चर्ड। अब कंपटीशन परफॉर्मेंस अपने आप में एक कोर कॉन्सेप्ट है लिंग्विस्टिक्स का, जस्ट लाइक वी हैव synchronic and diachronic approach, and just like we have Lang and Parole. So competence performance is a concept that is given by Noam Chomsky. So the competent part of a language is essentially the generative linguistics. When you believe that all those abstract rules, abstract letters, alphabets, sounds that are there in our mind is the competitive, how competent you are in a language, how well you know the rules. So पहले के टाइम पर कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता था, जैसे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक। तो जब इन लैंग्वेजेस को जो स्ट्रेचर दिया जाता है और उन्हीं के ही रूल्स को हम इम्प्लाई कर देते थे दूसरी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पर, उन्हें क्लासिकल का दर्जा देकर, तो वो जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स होता था। तो जब एक लैंग्वेज को हम ब्रेन, मेंटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड इननेट एस्पेक्ट से पढ़ते हैं तो वो जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स होता है। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स होता है आज के टाइम का मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। व्हेन वी कैन डू, अगर हम कैट लिख रहे हैं तो वी आर राइटिंग इट दिस वे, वी आर राइटिंग, एंड हम इसकी साउंड भी जानते हैं, हम इसकी साउंड भी जानते हैं, हम इसकी साउंड भी जानते हैं। तो अगर हम वर्ड लिखते हैं सिट, तो अगर हम उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो एस हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, ई हमारे लिए वॉवल है, ट हमारे लिए एक कॉन्सोनेंट है जो कि हमारे लिए एक साउंड है। तो एस आई टी, व्हेन वी नो एस बिलोंग्स टू द कॉन्सोनेंट फैमिली, आई बिलोंग्स टू द वॉवल फैमिली, एंड बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड टुगेदर। When you study a language by breaking the structure, by you just know that the format will follow like this: subject, verb and object. Descriptive linguistics is a term, it's a concept given by Leonard Bloomfield. It is real and
empirical. You talk about the performative aspect of a language. You do not focus on the mental grammar or the rules of a grammar, but you will focus on if you are speaking, why you are speaking, why you are speaking this way. Even if my daughter is in grade 2 and if I ask her to pronounce some word, what she will do, she will start by breaking that words into sounds, into speech sound. So when I say this thing that please make this word, for example, brim, she will read, this is b sound, r sound, together it becomes br sound, this is e sound, this is m, and instantly she will tell me that this is brim. For k and k, they have this demarcation k and c के। तो ये सब जो हमने पढ़ा है, ये सब जो हमने नहीं पढ़ा है और जो आज की जनरेशन पढ़ रही है, वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें फर्डिनेंड डी सोश्योर सबसे बड़े प्रोपाउंडिंग फिगर है। स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे फर्डिनेंड डी सोश्योर आते हैं, जिन्होंने सिंक्रोनिक स्टडी करी, डायक्रॉनिक स्टडी करी, फेवर किया सिंक्रोनिक स्टडी को, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा कि सिंक्रोनिक स्टडी में यू ब्रेक अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दिस थिंग, आई, for that matter, Sahil is going to, wait, let's make another easy subject. He is sitting on a bench. अगर इफ इट्स दिस इज अ सेंटेंस, हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैसे करेंगे, फर्डिनेंड डी सोश्योर वाली स्टडी कैसे करेंगे? ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, सिटिंग है हमारा वर्ब, बेंच है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर मैं वर्ब लेती हूँ, सिटिंग में से भी मैं क्या जनरेट करती हूँ, अपनी बेसिक वर्ब क्या है, सिट, और इसको दिस इज द सिंटैक्टिक स्टडी। सिंटैक्टिक स्टडी से पहले हुई सिमेंटिक स्टडी। मैंने समझा, मैंने मीनिंग समझा सेंटेंस का, ही इज सिटिंग ऑन अ बेंच। तो यहाँ पर मैंने समझा ही इज सिटिंग में सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। वर्ब है हमारी सिट, सिटिंग, सिट से मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब निकाला सिट। सिट को अगर मैं दिस सिट बिकम्स मॉर्फीम, ये एक वर्ड है। अब इसमें से मैं साउंड्स डिराइव करूंगी, तो मैं मिनिमल डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट जब निकालूंगी तो आई विल राइट इट दिस वे, आई एम demarcating S, I and T. So this is the descriptive study जो modern day linguists जो है वो करते हैं। आज के टाइम पर we do not study A for apple, B for ball. Rather we study apple, B ball. So whenever the word, whenever the sound, whenever the letter B appears in front of your child, in front of today's generation, they instantly know that this is B, and B bat, B ball. They will recognize it by, they will recognize not only the formation of that letter, but they will recognize what they will recognize, they will recognize the speech sound associated with that letter. I hope I'm very much clear to you people. So let us look at it this way. जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स नोएम चॉम्स्की ने दिया है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इनेट होता है, कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। वेयर एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने दिया है, रियल एंड एम्पिरिकल होता है, परफॉर्मेटिव एट ऑल लेवल, फनीम्स, मॉर्फीम्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, हर लेवल पे जब आप एक लैंग्वेज को, एक सेंटेंस को जज करते हैं तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट further, let us take our discussion further. What is the scope of linguistics? Scope of linguistics is that linguistics today is a very crucial branch. It is independent. It attributes
It attributes certain place to a language. It attributes that language is not what, literature is not what that makes language, but language is something that makes literature. When you attribute place of respect to the language, language is another set of study, literature is another set of study, and language is one of those fields that has scope. एनटीए यूजीसी नेट में लिंग्विस्टिक्स को एक ब्रांच ऑफ स्टडी बताया गया है, एक सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया है, ये है लिंग्विस्टिक्स का स्कोप. टुडे लिंग्विस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन्स. व्हेन वी स्टडी लैंग्वेज एज इटसेल्फ, सेल्फ एनक्लोज्ड, ऑटोनोमस, हम लैंग्वेज को रिलेशनल नहीं बनाते हैं, हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही पढ़ते हैं. तो दैट इज द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो हमारा होता है. All right, now let us talk about the branch of linguistics. There are many branches of linguistics, there are many types of linguistics for that matter. We have psycholinguists, we have sociolinguists, we have historiolinguists, and we have neurolinguists. This video will be little longer, but I tell you, if you are preparing for NTA UGC NET and if you are preparing for UPPSC GDC, this video is very, very, very useful for you people. Please do like, share in 2026. Let us grow together. Because your likes, your comments, they motivate me. They motivate me to talk about it much more. And if you want, on this platform only, I will help you complete the unit of linguistics there and then. हमने टॉपिक 1 से स्टार्ट किया है, एंड आई विल मेक श्योर कि हम लोग इसे कंप्लीट स्टडी करें. तो उस कंप्लीट स्टडी के लिए मैं चाहूंगी आप कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क्स छोड़कर जाएं, बताएं कि मैम हमें जीडीसी के सिलेबाई में, एनटीए नेट के सिलेबाई में और क्या और कितना पढ़ना है. व्हाट वी आर हेयर फॉर, टू एजुकेट यू पीपल, टू शेयर आवर innate knowledge with you people. So psycholinguists होते हैं, लैंग्वेज, दे स्टडी लैंग्वेज एज अ मेंटल फिनोमिना. ये जो हमारे साइकोलिंग्विस्ट होते हैं वो समझते हैं कि एंजाइटी का, हैप्पीनेस का, सैडनेस का क्या असर होता है हमारी लैंग्वेज के ऊपर. व्हेन वी if we say, if I give you the example, oh, if you are happy, how you will say it? If you are sad, how you will say it? If you are anxious, how will you say it? So linguistics, they primarily study how the thought is formed, and from thought you come to the concept, and from concept you come to the articulation. So psycholinguists combine psychology with linguistics, with the language pattern. They combine the psychology of a human brain to the language. They also study how language is generated throughout the years. When a child is born, its language is different. It cries to showcase hunger, to showcase the diaper change. So what all this is, psycholinguists, they study how psychology affects the language. For that matter, a serious concern I just confronted, when there are no family members in the family, a child appears to speak at a later stage. Because of the nuclear family system, children today are speaking, are attaining their vocabulary or attaining their vocal voice at a later stage. And the only reason to this is because of the nuclear family. There are not many people to talk to that child, and that child is developing that ability to speak, or the speech production takes up later, much contrary to the earlier times. So the psychology, your mental status, your emotional status really affects your language skills. आजकल के मैसेजेस में लिखते हैं वो क्या डिनोट करता है? आपकी साइकोलॉजी, कि आप यस तो कर रहे हैं बट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट. एंड इफ यू स्टडी लिंग्विस्टिक्स इन सच एन इजी वे, आई टेल you, there will be no stopping you from getting full marks in this unit. Next are sociolinguists. These sociolinguists, they study and establish a relationship between society and a language. And I tell you, there is a difference between
There is definitely a very real relationship between society and language, because a society that comes up with the idea of language, where you are born, your language will belong to that place. If you are a complete Haryanvi, you live in Rohtak, your Haryanvi will be different. And if you travel to Ambala, because that's a place nearing the state of Punjab, your Haryanvi will be different. In Delhi, your Haryanvi will be different. So how language varies across class, gender, region, religion, that's the study done by sociolinguistics. How society, how your upbringing, where you belong to, which class you belong to, and the language you have, it it the matter, it's a cause of concern of study of sociolinguistics. Next we have neurolinguistics. Neurolinguistics are the study, when you study language in the context of the human brain, how language is produced, how language is comprehended. First of all, how language is comprehended, how language is produced, and how it is articulated. That's a study of neurolinguists. Neurolinguists not only study language in terms of brain, but they also study the common mistakes that you do while articulating a word. Malapropism, spoonerism, aphasia, dyslexia, these are the neurological problems. Slip of the tongue, tip of the tongue. When a word is there just on the tip of your tongue and you are not able to get to that word. अरे क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बोलना तो चाहता हूँ बट मुझे उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है. Malapropism. मिसेस मालाप्रॉप कैरेक्टर है शेरिडन के प्ले में, वहां से इंस्पायर होकर स्पीच डिफिकल्टी. स्लिप ऑफ द टंग का भी हम आपको एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे. सो व्हेन वी फील डिफिकल्टी इन गेटिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पीच प्रोडक्शन राइट, it becomes a study of neurolinguistics. टिप ऑफ द टंग होता है, स्लिप ऑफ द टंग होता है, अफेजिया होता है, मालाप्रॉपिज्म होता है, स्पूनरिज्म होता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नो, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. तो यहाँ पर जो है ये मालाप्रॉपिज्म, स्पूनरिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, ये सब चीजें न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में आती हैं. विलियम स्पूनर एक एंग्लिकन क्लर्जीमैन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. उन्होंने कहा कि स्पूनरिज्म क्या होता है, व्हेन यू चेंज द वर्ड्स, यू हैव हिस्ड ऑल माय मिस्ट्री लेक्चर्स, रादर कहना क्या था, यू हैव मिस्ड ऑल माय हिस्ट्री लेक्चर्स. तो स्पूनरिज्म. नेक्स्ट इज न्यूरोलिंग्विस्टिक्स. न्यूरोलिंग्विस्ट जो होते हैं, दे ऑल्सो स्टडी ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन, राइट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन, ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, एंटीरियर कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स. हमारे माइंड में लेफ्ट हेमिस्फेयर, ब्रोकाज एरिया, ब्रोका एक डॉक्टर हैं, एक फ्रेंच सर्जन हैं, उन्होंने क्या पाया कि जब हमें लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन में चोट लगती है, एंटीरियर स्पीच कॉर्टेक्स में हमें चोट लगती है, तो हमारी स्पीच की प्रोडक्शन रुक जाती है. वही वर्निकेज एरिया, वर्निके एक डॉक्टर है, एक जर्मन सर्जन है, उन्होंने क्या पाया कि जब हमें चोट राइट हेमिस्फेयर में लगती है तो हम स्पीच समझना छोड़ देते हैं, स्पीच कॉम्प्रिहेंशन अफेक्ट हो जाती है. तो ये भी न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का पार्ट है. ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, मोटर कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ना केवल हमारी हैंड्स, लेग्स एंड आर्म्स को कंट्रोल करता है, बट उसके साथ कंट्रोल करता है हमारे आर्टिकुलेटर्स को, हमारे लिप्स को, टंग को. जब हमारे आर्टिकुलेटर्स अफेक्ट होते हैं तो हमारा मोटर कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज आर्क्यूएट फेसिलिस. ये एक थिन नर्व टिश्यूज होते हैं बिटवीन ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकेज एरिया. इसको इट्स अ कनेक्शन, हमारे राइट साइड ऑफ ब्रेन में स्पीच कॉम्प्रिहेंशन होता है, हम राइट साइड से सुनते हैं, लेफ्ट साइड से प्रोड्यूस करते हैं. ब्रोकाज एरिया
सॉरी ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया। तो ये सब कुछ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी वीडियो के साथ मैं टैग कर दूंगी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को, हमारे यूपीपीएससी जीडीसी के सिलेबस में है, एनटीए नेट के सिलेबस में है। इसी के साथ मैं टैग कर दूंगी वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को, पिट गिल्स, क्रियोल, रजिस्टर्स, सब कुछ हमने टेकअप कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। आई विल टैग दोज वीडियोस इन दिस वीडियो ओनली, तो आप उन्हें भी व्यू कीजिए। आपका कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स का यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। जो टॉपिक्स बच गए हैं उन पर बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड की जाएगी। प्लीज डू लाइक शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। लेट अस ग्रो टुगेदर एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप हमसे यूपीपीएससी जीडीसी के स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स के नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेडीमेड कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स यूनिट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में ही हेल्प करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हमसे कोर्स के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। और लिंग्विस्टिक्स आई टेल यू हमारा एक बहुत हिट टॉपिक रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट जीडीसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया है। प्लीज डू शेयर दिस चैनल। दिस इज डॉक्टर नेहा, all here to help you. Thank you. Good luck as you prepare.